गरम है सत्यम। Oh, okay. So, UGC is also working upon this open access concept and providing various services and open access databases and access to e-journals, right? Uh, InflibNet is Information and Library Network Center, and it is an autonomous center working under UGC. You can see there are several ICT initiatives taken by InflibNet. Okay, the very first one is e-consortium. Okay, under this e-consortium, it is giving access to all university libraries, that is eShodha Sindhu. eShodha Sindhu is one of the package under which they are providing access to certain abstracting and indexing databases, e-journals of reputed publishers, okay, and also electronic thesis repository, access to electronic thesis repository. Then to uh, have plagiarism check, they have initiated one portal, that is Shodha Shuddhi. Okay, from here they are providing you the access to Urkut. And there is one more program जो केवल 5500 annual subscription में आपको मिलता है colleges को, that is Enlist program. Through Enlist also you will be getting so many journals and e-books, right? Then InflibNet is hosting information science every year, Caliber, and they have their own institutional repository. आप इनकी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में से वो कॉन्फ्रेंस के ब्राउशर्स, वो कॉन्फ्रेंस में पब्लिश्ड पेपर्स, प्रेजेंटेड पेपर्स, वो सब एक्सेस कर सकते हैं. Then it is also giving access to Shodha Ganga and Shodha Gangotri, which is absolutely under open access. You can get the access. Okay, Shodha Ganga and Shodha Gangotri. Then they are working upon one more project, that is EPG Pathshala. Then they have created one Vidwan database also, and they have created a portal Vidyamitra. Okay, and under Vidyamitra they are giving you the video lectures, then text material, lecture notes, and whatnot, right? In several subjects. InflibNet is also giving you the access to IndCat under open access. It is the Union Catalog of Indian University Libraries. Okay, and Soul is the software they have developed for management of libraries. Right. So these are several initiatives are taken by InflibNet Center under UGC. Okay, now we will see some of the major one. See, this is the page of eShodha Sindhu. देखिए eShodha Sindhu जो है, is the package given to university libraries और इसमें सब information sources को access होता है. You can see कितने universities या इसमें cover हुए हैं और इसमें 10,000 से भी ज़्यादा e-journals को access दे रहा है eShodha Sindhu. And here 1,64,300 plus e-books को access दे रहा है eShodha Sindhu. Then NDL के थ्रू इतने सारे बुक्स का एक्सेस है. देन फोर मेजर डेटाबेसेस को भी वो एक्सेस दे रहा है. ठीक है, तो आप अगर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के मेंबर हो, देन यू कैन एक्सेस ऑल दिस कलेक्शन. देखिए फ्रेंड्स, यू ऑल आर PhD रिसर्च स्कॉलर्स. आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यू शुड बिकम मेंबर ऑफ योर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर के लिए हम 4 BT देते हैं. 4 BT देते हैं का मतलब आप एट ए टाइम 4 किताबें वहां से उठा सकते हो कंसल्टेशन के लिए. और दूसरी चीज है
ये आप पूरे ई रिसोर्सेस यूज कर सकते हो जो यूनिवर्सिटी ने सब्सक्राइब किए हैं आपके लिए, ठीक है। और मुझे कहने में अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को ये पता नहीं रहता कि वो लाइब्रेरी के मेंबर बन सकते हैं, वो बनते नहीं है। और हमें जो वेब ऑफ साइंस वाले हैं, जो आपका ई शोध सिंधु में आपको एक इम्पोर्टेंट ये मिल रहा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज साइटेशन इंडेक्स, दैट इज वेब ऑफ साइंस। थॉमसन एंड रूटर्स का इम्पैक्ट फैक्टर जो देता है वो सर्विस, तो वो डेटाबेस आप फ्रीली यूज कर सकते हो इफ यू बिकम द मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। लेकिन लोग होते ही नहीं है, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के हमको फोन आते हैं कि इट इज द सर्विस इज अंडर यूटिलाइज्ड। आप ज्यादा से ज्यादा आपके टीचर्स को और रिसर्चर्स को बोलो कि दे शुड use all these qualitative and important resources for research, right? अभी हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से आपको डेटाबेसेस मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए जेगेट प्लस का एक्सेस यहाँ से आपको मिलेगा। जेगेट में जितने जर्नल्स है उतने आप यूज कर पाएंगे। मैथ साइनेट है, वेब ऑफ साइंस है, आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो ये सब एक्सेस आपको मिलेंगे ई शोध सिंधु में से, ठीक है। और फुल टेक्स्ट जर्नल्स मिलेंगे आपको। देखिए एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, देन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, एनुअल रिव्यूज, एसी जर्नल्स, ठीक है, एएसएमई जर्नल्स ऑनलाइन। तो ये सब जर्नल्स का एक्सेस आपको यहाँ से मिलता है। ओके, नाउ शोध शुद्धि इज द portal which is providing access to web-based plagiarism detection software to all universities and institutions. Okay, and they can log in and upload the documents for checking plagiarism. Okay, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये शोध शुद्धि के इतने सारे टोटल मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें से इतने सारे यूजर्स ने उसको यूज किया है, और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्लेजरिज्म के लिए चेक हुए हैं, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। एनलिस्ट is the set of e-resources specially designed for college life। मतलब यूजी का जो स्टाफ होता है, यूजी के जो टीचर्स होते हैं, उनके लिए यूजफुल ये जो पोर्टल है, ये सर्विस यूजीसी प्रोवाइड करती है, दैट इज एनलिस्ट। और आप यहाँ पे देख सकते हो एनलिस्ट का एक और बहुत अच्छा ये है कि रिमोट एक्सेस देता है, वो आईपी ऑथेंटिकेशन नहीं है, रिमोट एक्सेस देता है वो, ठीक है। मतलब आपको अगर आपका पासवर्ड और यूजर नेम मिल जाए एनलिस्ट का, तो आप कहीं पर भी बैठ के वो डेटाबेस को यूज कर सकते हो। उसके बाद में मैंने कहा कि InfluxNet is maintaining its own institutional repository and they are using the software DSpace। See, ये सब जो ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरीज है वो मैनेज करने के लिए there is one powerful open source software that is DSpace and it is very popular also। तो अभी देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं अगर डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड मुझे कुछ पेपर्स चाहिए, तो देखिए 149 पेपर्स आर अवेलेबल इन देयर रिपोजिटरी। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, तो लिस्ट आई इतने पेपर्स की। सपोज आई वांट टू सी दिस वन, तो ये आ गया पेपर पूरा यहाँ पे, राइट। तो इन दिस वे द इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज वर्क उसमें, लेकिन उनका इन हाउस मटेरियल ही रहेगा, बाकी लोग उसमें अपलोड नहीं कर पाते हैं। इट इज लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ओनली, लेकिन हाँ रीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको रीड कर सकते हैं। ओके, the UGC is also maintaining one important database, that is Big1 database, ठीक है। इसमें आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इफ यू आर अ टीचर, इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन एनी फील्ड। ओके, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हमको एक्सपर्ट सर्च करने हैं,
है ना, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो हम विद्वान डेटाबेस का आधार जो है ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे विद्वान डेटाबेस में आप वॉलंटरी भी अपना जो है वो दे सकते हो, बायोडाटा अपलोड कर सकते हो। अभी तक इस डेटाबेस में आप देखेंगे 62,241 एक्सपर्ट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है फ्रॉम 6 to 97 ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आगे चलते हैं। See, UGC has also created one integrated e-content portal. The name is Vidyamitra, and of course, it is the project of under National Mission on Education through ICT, NME ICT. Okay, and what you get here, you will get online course material, expert notes, video lectures, and as well as e-books you will get in different subjects like social science, engineering and technology, medical and health sciences, agricultural sciences, biological, chemical, physical, arts and humanities, right? अभी थोड़ा आगे चलते हैं। आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें कंप्यूटर साइंस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। You can also see here eVidyamitra provides you 44,450 e-text, then 66,174 e-tutorials and videos, and other material 37,000. Then UG related material you can see 46,550, PG related 20,487 learning objects, and others 4,753. Okay. Now I am coming to uh, a very important initiative of UGC, and that is Shodhaganga. It is the repository of Indian thesis. Okay, Indian Electronic Thesis and Dissertation Repository. It is also our national repository, you can say. देखिए यूजीसी ने रिसर्च में, हायर एजुकेशन में जो रिसर्च हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। उसमें से ये एक स्टेप था कि आपका थीसिस अवार्ड होने के बाद 1 महीने के अंदर आपका थीसिस शोधगंगा पे अपलोड होना चाहिए। ओके, सो यू कैन सर्च फॉर awarded thesis by universities in India in different subjects from here. Okay, so this is a very important site for every research scholar to know about. Okay, and here you can see till 2020 more than 275 awarded theses were uploaded in Shodhaganga. Okay, and see these are the top 10 universities contributing. That is University of Calcutta on the first place, University of Madras second place, and third place is Savitribai Phule University of Pune. Then you can see the recent coverage. It is having more than 2,76,000 full text theses, 7650 synopses, MRPs. MRP means minor major research projects, PDFs, and fellowships. Okay, 457 universities are contributing, and 526 universities have signed MOU with Shodhaganga. Now you can see Shodhaganga, you can search it by keywords. See here, I have chosen one word, that is Buddhism. Okay, see here, Buddhism. So in Shodhaganga, I retrieved with 166 thesis awarded on Buddhism. Okay? अभी आपको प्लीज मैं एक चीज बता दूं कि ये फिगर को ध्यान में रखिए, क्योंकि वो मैं आपको बाद में पूछूंगी कुछ स्लाइड्स के बाद में, राइट। तो 166 थीसिस जो है वो यहाँ पे आपको एक्सेस हुए हैं ऑन अ सिंगल कीवर्ड, दैट इज बुद्धिज्म। नाउ suppose I want to read one of the thesis,
तो आपको क्लिक करना है उसके ऊपर. So this is the information you required for citation. Okay, and then the thesis will appear in this form. Okay, right from title page to bibliography, you will get the thesis. Okay, suppose if you want to see the content, then go through contents. तो 5 पेजेस का ये कंटेंट है, तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या है. देखिए, शोध गंगोत्री इज पार्ट ऑफ शोध गंगा. ठीक है, इसमें रिसर्च इन प्रोग्रेस आपको बताया जाता है. जैसे आपको अगर पता करना है कि आपका जो टॉपिक है उसके सिमिलर टॉपिक पे कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पता करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है. जैसे शोध गंगोत्री में मैंने यहाँ पे कीवर्ड दिया बुद्धिज्म. सो आई रिट्रीव्ड वन आइटम, और आप देख सकते हो दिस इज द आइटम. तो ये क्या है आप देखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि सिमिलर टाइप ऑफ रिसर्च वहाँ पे चल रहा है. सो इट इज रिसर्च इन प्रोग्रेस. Then these are the search lists of Shodha Ganga by giving various topics over here. Okay, and you can see introduction chapter, and you can search and browse by universities also, title also, keywords also, and you can retrieve. You can make the advanced searches also by using permutation and combination of keywords. Right. Now, one thing remember, we have searched with the keyword Buddhism, this Shodha Ganga. So we retrieved 166 theses. Now I'm giving you a very important information regarding NDLTD. NDLTD stands for Networked Digital Library of Thesis and Dissertations. Networked Digital Library of Thesis and Dissertations. राइट. ये सोर्स आपको पता होगा तो आपका कितना फायदा होगा बीइंग रिसर्चर, आप पता कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू दिस पर्टिकुलर लिंक, दिस इज रिसोर्सेज. आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन इट. हियर एट द बॉटम यू कैन सी इंडिया. इंडिया का जैसे शोधगंगा है नेशनल थीसिस रिपोजिटरी, वैसे ऑस्ट्रेलिया की ट्रोव है, बांग्लादेश की डिजिटल आर्काइव है एग्रीकल्चरल थीसिस के लिए. देन यू कैन सी ब्राजील की ये है, कनाडा का थीसिस कनाडा है, देन यूरोप का डार्ट है, फिनलैंड का ये है, फ्रांस का थीसिस फ्रांस है, जर्मनी का आप देखेंगे ये है, हांगकांग का है, और नीचे आप जाएंगे तो यूके और यूएसए के भी आपको मिलेंगे. दैट मीन्स NDLTD इज अ प्लेटफॉर्म. ये आप अगर NDLTD को कीवर्ड सर्च देते हो तो वो इतने सारे देशों के रिपोजिटरीज को ट्रैक करके आपको एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट देता है. मीन्स पूरे विश्व में जितने देश है, देश में जितने यूनिवर्सिटीज है, उनके अवार्डेड थीसिस आपको यहाँ पे मिलेंगे. राइट. तो इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म फॉर सर्चिंग द थीसिस लिटरेचर. ओके, अभी देखिए जैसे मैंने बुद्धिज्म शोधगंगा में दिया, आई रिट्रीव्ड ओनली 166 रिजल्ट. लेकिन मैंने ये जो पर्टिकुलर NDLTD है उसमें एक लिंक है ग्लोबल लिक्विडिटी सर्च. तो ग्लोबल लिक्विडिटी सर्च में जब मैंने ये दिया, यू कैन सी हियर कितने सारे थीसिस है, मोर देन 44 lakhs. देखिए शोधगंगा में 2,76,000 थीसिस है, लेकिन ये पर्टिकुलर रिपोजिटरी में मोर देन 44 lakhs थीसिस आपको यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बुद्धिज्म कीवर्ड दिया और मुझे रिजल्ट आए 3121. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. देखिए आपको पता था केवल शोधगंगा आपने सर्च किया 166 रिजल्ट्स थे, लेकिन मुझे पता है NDLTD के बारे में. मैंने NDLTD को सर्च किया तो मुझे 3121 रिजल्ट
मिले, राइट। तो ये चीजें स्पेसिफिकली आपको पता होना जरूरी होता है बीइंग रिसर्च स्कॉलर। आप यहाँ पे फिल्टर्स का यूज कर सकते हो टू सर्च। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे चाइनीज लैंग्वेज में ज्यादा थीसिस लिटरेचर आपको मिलेगा ऑन द कीवर्ड बुद्धिज्म, लेकिन ये इंग्लिश के तो आप यूज कर सकते हो आराम से। हम देखते हैं 907 इंग्लिश के कौन से है, तो मेरा सर्च कितना एग्जॉस्टिव हो गया आप देखेंगे अभी। और मोर एंड मोर रिसर्च मैंने कवर किया है अभी यहाँ पे। these are 907 thesis from all over the world, okay, on the keyword Buddhism. You can see this one and you can click on any one. So it is the title page of one thesis, that is Buddhism in South Africa. Okay, then you can see this is actually another thesis. Then this is the abstract. Then हर एक को लिंक्स दिए गए हैं, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड्स मिलते जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द थीसिस, आप देख रहे हो 443 पेजेस का ये थीसिस है, बुद्धिज्म इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। एंड इट इज अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन, डेरिल ब्रैटन का है ये थीसिस आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो देखिए इतना सारा लिटरेचर अवेलेबल है आपको ओपन एक्सेस में, मेक यूज ऑफ दिस लिटरेचर। सी देयर आर सम सर्चिंग मैकेनिज्म्स आल्सो, टूल्स आल्सो अवेलेबल विद यू नाउ। जैसे आपको एक किताब बहुत जरूरी है और हमारी लाइब्रेरी में वो नहीं है, तो कौन सी दूसरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो पता करना है आपको, तो यू कैन गो फॉर इनकैट। ओसीएलसी का इनिशिएटिव है वर्ल्ड कैट, यानी उन्होंने वर्ल्ड का कैटलॉग बनाया है यूनियन कैट का। और साइंटिफिक सीरियल्स का एक कैटलॉग सीएसआईआर का निस्केयर जो हेडक्वार्टर है वो लोग मेंटेन करते हैं। तो यू कैन सी दिस इज इनकैट पेज, ये भी यूजीसी मेंटेन करती है थ्रू इंप्लीमेंट। तो इसमें आपको बुक्स थीसिस सीरियल्स का सर्च मिलेगा, फिर दिस मेनी बुक्स का लिस्टिंग, बिब्लियोग्राफिक लिस्टिंग आपको यहाँ से मिलेगा और उसकी लोकेशन, ये कहाँ वो बुक है, ठीक है। नाउ 178 यूनिवर्सिटीज के बुक्स के कैटलॉग्स को उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, और 315 के थीसिस को और 223 के सीरियल्स को उन्होंने यहाँ पे लिया है। See, this is actually the search page given. You can also search the collection by university name. ठीक है, जैसे कोई भी एक टाइटल आपने दिया तो वो बताएगा आपको कि कहाँ कहाँ कौन सी लाइब्रेरी में वो है। लाइब्रेरी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जैसे मुझे घर बैठ के अमरावती यूनिवर्सिटी का कलेक्शन देखना है लाइब्रेरी का, तो मैं आप यहीं से उसको चेक कर सकते हो। देखिए ओसीएलसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक वर्ल्ड कैट मेंटेन करती है, बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, राइट। तो ये प्रोडक्ट्स में से भी आप जैसे म्यूजियम आर्टिकल्स है, ड्राइंग्स है, पिक्चर्स है, उनकी भी लिस्टिंग उन्होंने इसमें की है। ओके, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का कैटलॉग, दैट इज वर्ल्ड कैट। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली साइंटिफिक सीरियल्स डेटाबेस, इट इज मेंटेन्ड बाय सीएसआईआर एंड इसके लिए लॉगिन लगता है, यूजर आईडी पासवर्ड लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि एक सीरियल है जो सीरियल मतलब जर्नल है जो मेरे लाइब्रेरी में अवेलेबल है और आपके लाइब्रेरी में नहीं है, आपको उसमें से एक पेपर चाहिए, तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि आप मुझे ये जर्नल में के ये इशू में का ये पेपर भेज दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज वो देते हैं, आपको मिलता है। ऑफ कोर्स दे मे चार्ज यू, राइट। तो इस प्रकार से ये जो नेशनल यूनियन कैटलॉग्स है वो काम करते हैं। Now friends, I am coming to a very important initiative
ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड ओपन कोर्सवेयर OCW। ओपन कोर्सवेयर का मतलब होता है ये कोर्स है, आई आई वांट टू कंडक्ट इट ऑनलाइन, ओके। उसका एक सिलेबस बनता है और वो सिलेबस पे एक्सपर्ट्स लोग अपने नोट्स बनाते हैं एंड दैट आर गिवन टू द स्टूडेंट्स एनरोल्ड। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कोर्सवेयर। मतलब एक कोर्स है, उसका एक सिलेबस है, सिलेबस को पकड़ के ई कंटेंट बनाओ और यूजर को दो। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ईयर 2000 में शुरू हुई थी और वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था उसको MIT यूनिवर्सिटी US ने उसको इम्प्लीमेंट किया। यू कैन सी ये पुराना स्क्रीनशॉट है, लेकिन नाउ मोर देन 2200 कोर्सेज दिस यूनिवर्सिटी इज रनिंग ऑनलाइन, ओके। तो वो कोर्सेस आप देख सकते हैं यहाँ से डिपार्टमेंट वाइज। जैसे आपको भी कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने हैं, यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस कोर्सेज विथ फीस, ओके। जैसे आपको ये इसमें से आपका सब्जेक्ट चुनना है, ओके। जैसे मैंने स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट चुना, तो देखिए उनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ग्रेजुएट कोर्सेज भी है। देन ये देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ये सब है, आप देखेंगे डेटा माइनिंग, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो ऐसे उनके कोर्सेज है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स के फीचर्स, हाइलाइट्स और उसके डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे मिलेंगे एंड लेक्चर नोट्स मिलेंगे जो उनके एक्सपर्ट फैकल्टी ने बनाए हैं, ओके। स्टडी मटेरियल मिलेगा। सी व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लेक्चर नोट्स तो आपको ऐसे PDF फॉर्मेट में आ जाएगा, जैसे क्लियर एंड कॉन्साइज राइटिंग PDF। देखिए ये उनके पूरे नोट्स जो है आपको मिल रहे हैं ऑनलाइन, राइट। ऐसे ही आप ग्रेजुएट कोर्सेज देखेंगे तो देखिए दिस इज वन ऑफ द कोर्स इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजंस, फिर इसमें आपको लेक्चर नोट्स, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, असाइनमेंट एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे, okay। See, these are the lecture notes available. Click on PDF and you will get the things. These are some of the courses from history, okay? See, American history to 1865, okay। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। See friend, there is one more Indian initiative जो हमारे IITs है और IISc जो है उनका एक इनिशिएटिव है फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट लोगों के लिए, यूजर्स के लिए। दैट इज NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। It is a project funded by MHRD, Government of India, and it supports architecture as well as engineering subjects. Okay, so here you can see the courses also. See, these are list by discipline. आप subject wise कर सकते हो. They are providing the e-content in two forms. The first one is video course and other one is web course. Web course में आपको कंटेंट मिलेगा इन द टेक्स्ट फॉर्म एंड वीडियो कोर्स में ऑफ कोर्स आपको फुल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, राइट। हियर यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द subject, okay, and it is related to electrical engineering. It is prepared by this faculty, मतलब IIT के जो टीचर्स है उन्होंने बनाए हुए वीडियो लेक्चर्स और नोट्स आपको घर बैठे मिल रहे हैं। IIT मद्रास, इट इज इन वीडियो फॉर्म, राइट। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर दिया है उन्होंने और यहाँ पे ये टीचर आपको वीडियो लेक्चर सुना रहे हैं, ओके। देन यू कैन सी, यू कैन ऑल्सो सर्च, जैसे आपको IIT बॉम्बे वालों के लेक्चर्स या नोट्स चाहिए तो यू कैन search by institution wise also. See here you can see these are the subjects given over here, discipline, okay। अभी मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में देखना है तो उन्होंने
यहाँ पे बताया है कि लेक्चर्स अवेलेबल है, ये नोट्स है ना। तो मॉड्यूल 1 टेंसर अलजेब्रा, तो क्वांटम मैकेनिक्स का ये एक लेक्चर है और उसके पूरे नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे मॉड्यूल वाइज, राइट। So NPTEL is also one of the project towards e-content development. अभी एक और है इग्नू, जो हमारी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू। तो उनके जो बुकलेट्स है, उनके जो फैकल्टी के लेक्चर्स है, वो सब आपको मिलते हैं ई ज्ञानकोश में। ऑफ कोर्स इसमें साइन इन करना पड़ता है आपको, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कर सकते हो। और उन्होंने कम्युनिटीज के हिसाब से ये सब किए हैं, आप देख सकते हो। यू कैन सर्च एंड ब्राउज बाय कम्युनिटीज एंड कलेक्शंस। अभी इग्नू एबी लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हो। अभी देखिए इसमें क्या क्या कलेक्शन है उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको इस प्रकार से उसमें सर्च करना है। जैसे मैंने एक कोर्स देखा, सर्टिफिकेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इग्नू का। तो वो कोर्स को जब मैंने क्लिक किया तो ये सब टाइटल से मुझे उनका ई कंटेंट मिला। जैसे इसको मैं क्लिक करती हूँ तो ये बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन आया, एंड हियर यू कैन सी व्यू और ओपन। तो ये एक वीडियो लेक्चर जो है वो मुझे यहाँ से मिला, राइट, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। देन ये स्कूल वाइज वो आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी देता है। जैसे आप देखेंगे आप वेरियस डिग्री कौन सी है उसके हिसाब से, जैसे बैचलर है, मास्टर्स है। मैंने मास्टर्स को क्लिक किया, मास्टर्स को क्लिक करने के बाद में मुझे एनलिप का मिला ये। और उसमें आप देखेंगे कि ये पेपर्स है, ठीक है, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। तो आप पेपर वाइज इसको सर्च करेंगे तो उसमें यूनिट्स आएंगे, यूनिट्स को क्लिक करेंगे आप, तो आप यहाँ पे व्यू ओपन करके वो पूरा नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो। दीज आर 13 पेजेस, ओके। तो वो मैंने डाउनलोड कर लिया। सो ई ज्ञानकोश इज फॉर इग्नू, कैन सी ओवर हियर टूल्स एंड ऑफ टीचिंग जियोग्राफी। तो फ्रेंड्स हमने देखा एनपीटीईएल, आईआईटीज का, फिर इग्नू का। उसके बाद में देयर इज वन मोर ई कंटेंट प्रोजेक्ट एंड दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक टेक्स्ट बुक्स है, दीज आर अवेलेबल ऑनलाइन, ओके। जस्ट हियर सिलेक्ट द क्लास, सिलेक्ट द subject and select the book title, then you can download these books. See, जैसे मैंने जीव विज्ञान ये हिंदी में का बुक डाउनलोड की हूँ, मुझे सपोज उसका चैप्टर 6 पढ़ना है, तो ये देखिए वंशागति के आणविक आधार है, तो वो पूरा चैप्टर यहाँ पे खुल जाता है। इस प्रकार से यू कैन एक्सेस ऑनलाइन दीज ऑल टेक्स्ट बुक्स, राइट। आगे चलते हैं। There were several digital library projects in initial moment, okay। और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनते गए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो आते विलीन होते गए। तो वन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मुझे मिला था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज विद्यावाहिनी। इट इज फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया था कि दो अलग अलग प्रकार के कंटेंट बनाए थे, एक शिक्षा और एक विजन ने। शिक्षा में उन्होंने क्या किया था कि क्लास 9 टू 12 सीबीएसई का जो सिलेबस होता है, साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, साइंस एंड मैथ्स का, तो उसको उन्होंने कवर किया था। जैसे क्लास 9 को मुझे देखना है, तो देखिए ये फिजिक्स के चैप्टर्स आ गए। आपको पहला चैप्टर को क्लिक करना है, तो ये चैप्टर पे 1 मार्क का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसका सही आंसर क्या है। 2 मार्क का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसका सही आंसर क्या है। इस प्रकार से उन्होंने ये पर्टिकुलर पोर्टल को बनाया था। और विजन जो था उसमें उन्होंने कोर्स मटेरियल तो बना ही था, लेकिन उसके साथ एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस भी दिए थे फॉर टीचर्स, ओके, एंड स्टूडेंट्स टू लर्न एंड टीच। अभी देखिए यहाँ पे सीबीएसई क्लास 11 बायोलॉजी,
these are all the topics. Okay, जैसे ये टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, तो उसके पूरे उन्होंने यहाँ पे नोट्स दिए। नोट्स देने के बाद में देखिए उन्होंने एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस दिए, जैसे लिविंग वर्ल्ड व्यू एनिमेशन। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस दिए ताकि वो बच्चा उसको यूज करे और अच्छे से पढ़े, सीधी लाइक दिस। ओके, सो इस प्रकार से कुछ प्रोजेक्ट स्कूल लेवल पर भी बने और अभी भी काफी हद तक स्कूल लेवल के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे बनके रेडी है। नाउ ईपीजी पाठशाला, इट इज also a government mission, and that is national mission on education through ICT। ठीक है, तो ईपीजी पाठशाला में भी उन्होंने इस प्रकार से जो है ई कंटेंट बनाने की कोशिश की है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग सब्जेक्ट कैटेगरीज में उन्होंने ये सब बनाया है। इसमें और एक चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें देखिए क्विज भी दी है ना, मतलब बेटर लर्निंग के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स में उन्होंने क्विजेस भी डाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। अभी यहाँ पे मैंने लाइफ साइंसेस को क्लिक किया। ठीक है, लाइफ साइंसेस में आई वांट टू नो अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन, तो आई एम क्लिकिंग ओवर हियर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन में सिलेक्ट द पेपर, सिलेक्ट द मॉड्यूल। आप पेपर सिलेक्ट करेंगे तो जैसे फूड साइंस है, फूड साइंस को मैंने क्लिक किया तो फूड साइंस में ये पूरे मॉड्यूल्स आ गए। कौन सा मॉड्यूल आपको पढ़ना है? मुझे फंक्शंस एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड्स पढ़ना है, मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 2 को मैंने क्लिक किया तो देखिए ये फूड ग्रुप्स क्लिक किया, सॉरी पहले इसको, तो ये फूड ग्रुप्स आ गया, फूड साइंस में फूड ग्रुप्स, तो ये आ गया। इन्होंने 4 क्वाड्रेंट में जैसे स्वयं के लिए करते हैं उस हिसाब से इन्होंने कोर्स डिजाइन किए हैं। इसमें देखिए अभी ये आपका वेब लर्निंग शुरू हो गया। वेब लर्निंग का मतलब है वीडियो लेक्चर्स है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस है, आप देख सकते हो। यू कैन रन दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। देखिए जैसे ये डेवलपमेंट का टीम का पूरा नाम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, then you can see the teacher is there and she is delivering video lecture over here on functions and nutrients of food पे। देखिए ये उनके इंटरनल स्लाइड्स है उनके प्रेजेंटेशन की। और आपको सबको पता है अभी आपको रेखा मैडम और प्रीति मैडम ने स्वयं मुक्स के बारे में बताया होगा कि मूडल पर आधारित जो स्वयं प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, तो वो लोग मोर देन 244 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज रन कर रहे हैं। ओके, और आपको सबको अभी पता होगा कि सब बोर्ड ऑफ स्टडीज जो होते हैं हर एक विषय के, है ना, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप आपके सिलेबस में स्वयं के कोर्सेज को ऐड कीजिए। मतलब वो प्रोविजन रखिए कि बच्चा एक 4 क्रेडिट का कोर्स बाहर से करके आ जाए तो उसके मार्क्स मार्क लिस्ट में आने चाहिए, राइट। मतलब आप अभी एक ऑप्शनल आपको चॉइस दिया गया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, कि आप स्वयं का एक कोर्स करके वैसे यूनिवर्सिटी को बता सकते हो। यू कैन अर्न द क्रेडिट्स फ्रॉम मूक्स कोर्स, राइट। अभी देखिए ये जो ईपीजी पाठशाला है उसका एक और कंट्रीब्यूटर है, दैट इज सीईसी। आप यूजीसी के वेबसाइट में अगर जाएंगे तो आपको ये ऐसा एक पेज दिखेगा, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो थ्रू दिस कंसोर्शियम बहुत सारा ई कंटेंट डेवलप किया है यूजीसी ने, और इट इज इन वेरियस फॉर्म। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एजुसेट, ये जो है सैटेलाइट थ्रू लेक्चर्स का प्रसारण होता है, उसका शेड्यूल होता है। देन ई कंटेंट होता है, ओके। देन लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी होता है, डिजिटल वीडियो रिपोजिटरी इज आल्सो देयर, ओके।
तो ये ई कंटेंट एंड लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी लर्निंग ऑब्जेक्ट यानी क्या, लर्निंग ऑब्जेक्ट के पीछे की उनकी क्या संकल्पना है वो हम देखेंगे। देखिए, जैसे दिस इज द क्वेश्चन, ओके, दिस इज द आइडियल आंसर, ओके, एंड यहाँ पे एक बंदा बैठ के आपको समझा रहा है, दैट इज थ्रू वीडियो। तो ये होता है लर्निंग ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने ऐसे शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के हर एक सब्जेक्ट में जो बेसिक संकल्पनाएं होती है, तो उसके छोटे 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 वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड किए। Actually, in 2009, I also worked upon this learning object repository. देखिए, उस वक्त मैंने एक एनालिसिस किया था, उसमें ये लर्निंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज कैसे है वो मैंने देखने की कोशिश करी। तो आप यहाँ मुझे दिखा के कंप्यूटर साइंस वालों के 105 लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे सीईसी ने बनाए हुए हैं। एनवायरमेंटल साइंस के 82 है, बायोलॉजी के 48 है, जियोलॉजी के 47 है। लेकिन जब मैंने देखा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का केवल एक ही है, एंड दैट टू वाज ऑन ई बुक्स, दैट टू ऑन ई बुक्स, राइट, and that was created by Dr. Jagdish Arora sir, and Jagdish Arora sir was former director of this Inflipnet, okay। तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिला, क्यों ना हम ये कर सकते हैं। इन 2009 I proposed one major research project to UGC, that is creation of learning object repository in library and information science based on model UGC curriculum। तो वो प्रोजेक्ट मुझे मिला, जगदीश अरोरा जी was there as an expert to assess the project, and उस वक्त मुझे 7,63,000 रुपीज यूजीसी ने दिए create that particular repository, right। अभी देखिए, वो रिपोजिटरी का पेज मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन जैसे ई कंटेंट या लर्निंग ऑब्जेक्ट है तो वो अलग अलग विषयों में इस प्रकार से बनता है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर सच प्रोजेक्ट्स इफ यू आर वर्किंग एज अ टीचर, ओके। जैसे बॉटनी को क्लिक किया, तो बॉटनी के इतने सारे उन्होंने बनाए हैं, जैसे यू कैन सी व्हाट इज कोरल जैस्मिन, देन बुश मॉर्निंग ग्लोरी, देन बिटल लीफ, then bougainvillea, then dodder, money plant। Suppose I want to see this money plant, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए ये मनी प्लांट, ये पूरा उसके डिटेल्स आ गए, राइट, ओके। और उनके ऑब्जेक्टिव्स आ गए, आउटकम्स, राइट। तो इस प्रकार से सीईसी काफी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो मेरा प्रोजेक्ट था, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट इन 2009, तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक पेज बनाया था, वेबसाइट बनाई थी, और वो वेबसाइट मैंने यूजीसी को सबमिट की थी। उसमें मैंने देखिए मूडल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है मूडल, और उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज ऐसे मॉड्यूल्स बनाए थे, फिर पीपीटी प्रेजेंटेशंस भी अपलोड किए थे, क्विज़ेस भी अपलोड किया था जहाँ जहाँ जरूरत है, वीडियो लेक्चर्स और ग्लॉसरी, ये चीज़ों को मैंने उसमें ऐड किया था, राइट। और मूडल में ही ये पेज बनाते हुए आई हैड गिवन सम सर्चिंग ऑप्शंस, registration options over here, and this was the punchline, that is tell me and I shall forget, show me and I may remember, involve me and I shall understand। तो ये उसका टैगलाइन था। एंड यू कैन सी मूडल में जैसे कौन कौन बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बनाई थी। यू कैन सी दीज वेर द ऑनलाइन फीसेस। यहाँ पे कैसे बच्चा यहीं के यहीं टिक करता है, सबमिट करने से उसको आंसर मिलता है। तो जब मैंने ये बनाया तो मुझे बड़ी मजा आई कि बहुत सुंदर बनता है ये मॉडल में। तो मैंने आईसीएसएसआर को दूसरा प्रोजेक्ट दिया कि क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक,
online quizzes for NET set JRF aspirants in library and information science for the subject paper. ओके तो उसके लिए मुझे 3.5 लाख रुपीज ICSE सर ने दिए और उसके बाद में जो जनरल पेपर है सोशल साइंसेस का नेट सेट JRF के लिए तो उसके लिए कुछ क्विजेस मैंने बनाए थ्रू यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट उसमें मुझे 2.5 लाख रुपीज मिले थे तो इस प्रकार से यू कैन डेवलप द थिंग्स एंड यू कैन मेक द विजिबिलिटी ऑन द वेब देखिए इस प्रकार से मैंने PDF के नोट्स बनाई थी इस प्रकार से ठीक है और वो भी अपलोड की थी बच्चों के लिए कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाए थे हम लोगों ने यू कैन सी द वीडियो लेक्चर्स तो फ्रेंड्स these were all actually the open access movement जिसे हम कहते हैं आप देखेंगे ठीक है so you must know all these resources which are available over here and secondly देखिए ये अलादीन का चिराग है जितना आप घुसोगे उतना ज्यादा पाओगे आप जितना डीप सर्चेस करते जाएंगे इसमें उतना ही आप ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर पाओगे ओके सो unlimited sources of information is there information explosion is there so there is a need for all of you to be IT savvy और आपको बहुत सारी काम जो है वो आपको करना है अभी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगी कि अगर आपको ओपन एक्सेस में आपका पेपर डालना है तो आप क्या कर सकते हो सो दैट आपका पेपर बहुत लोगों ने पढ़ना चाहिए ऐसी आपकी इच्छा है आपका रिसर्च वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए उसको बहुत लोगों ने साइट करना चाहिए ये अगर आप करना चाहते हो तो देयर इज अ ऑप्शन ऑफ सेल्फ आर्काइविंग ओके अभी सेल्फ आर्काइविंग आपको बताने के पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज एक्चुअली द साइटेशन इज एंड व्हाट इज एक्चुअली द बिब्लियोग्राफी इज ठीक है अभी देखिए ये जो साइटेशन होता है साइटेशन का मतलब है यू आर राइटिंग अ थीसिस आपने मेरा पेपर पढ़ा उसमें से यू हैव टेकन आइदर टेक्स्ट और इमेज और कोई डेटा या आइडिया आपने कुछ लिया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप मुझे साइट कीजिए मेरे पेपर को साइट कीजिए तो आपने मेरा रेफरेंस दिया आपके थीसिस में दैट विल बिकम वन साइटेशन फॉर माय पेपर बराबर है ना तो ये साइटेशन होता है अभी आपको एक चीज बता दूं मैं ये जो साइटेशन होता है वो दो प्रकार से दिया जाता है एक होता है वो शॉर्ट साइटेशन शॉर्ट रेफरेंस जिसे कहते हैं शॉर्ट रेफरेंस और दूसरा होता है फुल रेफरेंस शॉर्ट रेफरेंस जो होता है वो विद इन द टेक्स्ट दिया जाता है विद इन द टेक्स्ट मतलब आपने एक डेफिनेशन ली तुरंत उसको शॉर्ट रेफरेंस दे दिया शॉर्ट रेफरेंस दो तरीके से दिया जाता है एक तो नंबरिंग किया जाता है ठीक है 1 2 3 4 नंबरिंग किया जाता है और उसको सुपरस्क्रिप्ट में डाला जाता है या फिर IEEE स्टाइल जो है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में वो नंबर लिखा जाता है 1 2 3 4 और जैसे जैसे वो अपीयर होता है वैसे वैसे वो आता है राइट और दूसरा होता है सर्कुलर ब्रैकेट में जो ऑथर है उसका सरनेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन सर्कुलर ब्रैकेट में रनिंग टेक्स्ट में आता है दैट इज द शॉर्ट रेफरेंस अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी उसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं देखिए जो रेफरेंस होता है ना वो रेफरेंस आप हर एक चैप्टर के बाद में देते हैं मतलब आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर लिखा तो उसके लिए 110 रेफरेंसेस आपने लिखे राइट so that becomes your reference and which are given immediately after the chapter लेकिन बिब्लियोग्राफी जो होती है वो बिब्लियोग्राफी आपको थीसिस के एंड में देना पड़ता है थीसिस के एंड में देनी पड़ती है राइट तो थीसिस के एंड में अगर आप जब बिब्लियोग्राफी देते हो है ना
So what is actually the difference between references and bibliography? That is actually the question. देखिए, आप अगर जो रेफरेंसेस दिए हैं उसी को फिर से अल्फाबेटिकल करके वहां पे बिब्लियोग्राफी में देते हो तो क्वेरीज में कम फ्रॉम द एग्जामिनर्स, क्या आपको थीसिस का साइज बढ़ाना है? व्हाई यू आर गिविंग द सेम थिंग अगेन इन अटेंड, है ना? तो रेफरेंसेस अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, बिब्लियोग्राफी का पर्पस अलग रहता है। लेट मी tell you one thing. Once you have given the reference means you have handled that particular source, you have read that particular source, and you have borrowed either text, image, data um, from that particular or table from that particular source. Okay. और आइडिया भी अगर आपने ली तो भी यू कैन गिव द रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस वो बन गया आपका। ठीक है, और बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑल दिस रेफरेंसेस शुड नॉट बी रिपीटेड अंडर बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी यानी एडिशनल रीडिंग्स, मतलब आप जो आखिरी चैप्टर लिखते हो आपके थीसिस का, उस चैप्टर में एरियाज फॉर फर्दर रिसर्च ये आपको सुझाना होता है, सजेशन देना होता है। एरियाज फॉर फर्दर रिसर्च मतलब ये टॉपिक को अगर किसी और को आगे लेके जाना है तो वो कौन से एरिया में लेके जा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये पूरे 5 साल में आपको जैसे एक पेपर आपने रीड किया तो उसके जो रेफरेंसेस है उसमें एक बहुत अपीलिंग लगा लेकिन आपको वो मिला नहीं, आप उसे ढूंढ नहीं पाए, तो आप उसको एडिशनल रीडिंग करके उधर में दे दो ना, है ना? which will support the other researches. You have not used those, but you think that these sources should also be used by the research, future researchers, right? तो ये होता है एक्चुअल डिफरेंस। और जो शॉर्ट साइटेशन होता है रेफरेंस विद इन द टेक्स्ट, उसको आपको फुल रेफरेंस देने का है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट की हुई स्टाइल मैनुअल यूज करना पड़ता है। These style manuals are different, like MLA, APA, Harvard, Chicago, and their various editions. IEEE is also there, and then ISO standards are also there. So whichever your university is recommending, you use that particular style manual for generating the full references and bibliography also. So there are some online reference management tools like Zotero, which is open source, Mendeley, which is subscription based, and Note is also there, right? So ये पूरी चीजें जो है, ये पूरी चीजें बीइंग रिसर्चर आपको पता होना चाहिए, एंड यू शुड नॉट मेक एनी रिपीटेशंस आउट ऑफ, राइट? अभी और एक चीज हम देखेंगे कि ये जो सेल्फ आर्काइविंग का प्रोसेस होता है वो आप कर सकते हो। जैसे देर आर डिसिप्लिनरी आर्काइव्स अवेलेबल ऑन द वेब, तो वो आर्काइव्स में आप आपका पेपर जो है वो डाल सकते हो। वंस यू पब्लिश द पेपर यू कैन ऑल्सो आर्काइव द पेपर, लेकिन वो आर्काइव करने के पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, और वो चीज है कि आपको जस्ट आई एम टेलिंग यू, आपको कॉपीराइट पॉलिसी आपके जर्नल की क्या है उसके बारे में पता करना है। whether your publisher is allowing you to archive your paper or not, तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट अगर आपने वायलेट किया तो उसके लिए क्रिमिनल ऑफेंस है वो, और उसके लिए सजाएं भी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आर्काइविंग करते वक्त यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड यू शुड चेक द policy of your publisher through by using this particular database. That is, there is one Sherpa Romeo database is there. Okay, from here
you just put your journal ISSN or title or publisher's name, and you can see the policy of this particular शेरपा रोमियो डेटाबेस. देखिए आपका पेपर जब पब्लिश होता है जर्नल में तो उसका लाइफ साइकिल क्या रहता है. आप लिखते हो मैन्युस्क्रिप्ट, दैट इज प्री प्रिंट, वो रिव्यूअर के पास में भेजते हैं एडिटर. ठीक है, रिव्यूअर उसमें कमेंट्स देते हैं, आपको मॉडिफाई करने के लिए कहते हैं, फिर आप वो मॉडिफिकेशन इनकॉर्पोरेट करके पब्लिशर को, एडिटर को देते हो. एडिटर फिर से रिव्यूअर सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट मांगता है और फिर वो पेपर एक्सेप्ट हो जाता है. द मॉडिफाइड एंड एक्सेप्टेड पेपर इज नोन एज पोस्ट. एंड फिर एडिटोरियल बोर्ड क्या करता है, उसका कैमरा रेडी कॉपी बनाता है इन देयर फॉर्मेट, देयर जर्नल फॉर्मेट, हेडर, फुटर, इशू नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेजेस डाल. तो दैट बिकम्स रीप्रिंट या पब्लिशर्स पीडीएफ वर्जन. तो आपका पेपर 3 अवस्था से गुजरता है, प्री प्रिंट, पोस्ट प्रिंट एंड रीप्रिंट. ओके, अभी शेरपा रोमियो ने पब्लिशर्स की कॉपीराइट पॉलिसी और सेल्फ आर्काइविंग पॉलिसीज को स्टडी किया है. एंड they have categorized the publishers worldwide into 4 categories. The first one is green category, second one is blue category, third one is yellow and fourth one is white. Okay, अगर आपका पब्लिशर या जर्नल ग्रीन कैटेगरी में बताता है शेरपा रोमियो डेटाबेस, देन यू कैन आर्काइव प्री प्रिंट, पोस्ट प्रिंट और पब्लिशर्स वर्जन. ठीक है, मीन्स ग्रीन आपको आर्काइविंग करने के लिए खुली छूट देता है. ब्लू क्या कहता है, यू कैन आर्काइव पोस्ट प्रिंट, दैट इज फाइनल ड्राफ्ट आफ्टर रेफरिंग. ओके, और पब्लिशर्स वर्जन. तो ब्लू है, ग्रीन है, तो दे आर सपोर्टिंग सेल्फ आर्काइविंग. लेकिन येलो क्या कहता है, आप प्री प्रिंट जो है वही आर्काइव करते हो, जहां से हमारा प्रोसेस शुरू हो गया, यू कैन नॉट आर्काइव. व्हाइट कहता है नहीं, हमारे जर्नल की पॉलिसी है भाई, नो आर्काइव. तो अगर आपका पब्लिशर या जर्नल व्हाइट कहता है तो डोंट आर्काइव. इफ इट इज ब्लू, इफ इट इज ग्रीन, देन गो फॉर आर्काइव. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे नेचर पब्लिशिंग ग्रुप का पॉलिसी देखने की कोशिश की, तो वो क्या कहते हैं, ऑथर कैन आर्काइव प्री प्रिंट करो. लेकिन पोस्ट प्रिंट आप कब करोगे, पब्लिश होने के 6 महीने का एम्बार्गो कंप्लीट होने के बाद में यू कैन आर्काइव इट इन ओपन एक्सेस. लेकिन आप हमारा जो कैमरा रेडी वर्जन है उसको आर्काइव मत करो, ऐसा वो कहते हैं. तो दिस इज एक्चुअली रोमियो येलो पब्लिशर, और वो आपको आर्काइविंग 6 महीने के बाद में करने के लिए अनुमति दे रहा है. राइट, तो जैसे हम इसमें स्प्रिंगर का पॉलिसी देखना है, तो स्प्रिंगर क्या कहता है, प्री प्रिंट, पोस्ट प्रिंट आप कर सकते हो, लेकिन पब्लिशर वर्जन मत करो. तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो. राइट, तो जो भी शेरपा रोमियो का डेटाबेस है उसमें आप देख सकते हो 42 प्लस 33 कितना हो गया, 45, 55, 65, 75% publishers and journals, they allow you to self archive your paper, and the rest, that is 25%, they are not allowing you. So this facility is also there. और इंडिया के भी आप देखेंगे कि 122 पब्लिशर्स इंडिया से जो है, these are reported in शेरपा रोमियो database, and you can see over here ग्रीन 55 है, 58 ब्लू है, और केवल 11 पब्लिशर्स इंडिया के जो है वो आर्काइव करने से मना करते हैं. 9 अंडर व्हाइट कैटेगरी and 2 under yellow category. Right, so these are all the publishers, list of publishers with their policies of archiving from India. So friends, this is all for today. Okay, this is another topic, but I have just given you the idea regarding the self archiving process. और एक चीज
मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ओपन एक्सेस लिटरेचर है, सपोज मैंने मेरा पेपर जो है, मेरा थीसिस जो है वो मैंने ओपन एक्सेस किया, तो वो एकदम खुला हो गया है सब लोगों के लिए, ऐसा नहीं है. आई कैन पुट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट बाय यूजिंग क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग सिस्टम. अभी देखिए, अंडर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग सिस्टम्स आप ओपन एक्सेस लिटरेचर, जब भी आप कोई इमेज लेते हो या कोई भी ओपन एक्सेस लिटरेचर आप कॉपी करते हो, तो आपको उसका क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या है वो पता करना बहुत जरूरी है. देखिए, सीसी बाय अगर वो लाइसेंस है, तो इट अलाउज यू टू रीड, डाउनलोड, प्रिंट, शेयर, डिस्ट्रीब्यूट, रीयूज, बिल्ड ऑन, देन ट्विक, रिमिक्स, ट्रांसलेट, रीयूज, कमर्शियली रीयूज को भी वो हाँ कहता है, इफ दिस लाइसेंस इज देयर. लेकिन इफ द लाइसेंस इज सीसी बाय एनसी, तो वो आपको रीडिंग, डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग के लिए यस कहता है, शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यस कहता है, रीयूज करने के लिए भी यस कहता है, क्विक, रिमिक्स, ट्रांसलेट के लिए भी यूज करता है, बट वो कमर्शियल रीयूज को मना कर रहा है. और सीसी बाय एनसी एनडी लाइसेंस है, तो वो रीड, डाउनलोड, प्रिंट को हाँ कहता है, शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन को हाँ कहता है, रीयूज को हाँ कहता है, लेकिन वो ट्रांसलेशन को मना करता है, रिमिक्सिंग और क्विकिंग को वो मना करता है, और रीयूजिंग कमर्शियल को वो मना करता है. तो use open access literature, understand the copyright policies, various licensing systems, and go ahead in your research process. So friends, it is our journey from reprint to e-prints now, and this ICT is really a blessing for all of us. Okay, so with this note and statement of Alvin Toffler, I would like to conclude this talk. See, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. So, friends, I'm concluding here my talk. Thank you so much. Thank you. If you have any questions, certainly you can ask your questions. Okay. Thank you so much, Yes. madam. Friends, if you have any query, you can ask or you can discuss with ma'am. Excuse me, ma'am. I have a question. Whatever you have told, very informative, and I enjoyed every bit of it. One thing is how important this thing from the exam point of view. Sir, I'm not getting you. Your voice is breaking. Just a second. Can you hear me, ma'am? Your voice is breaking. I am not. Can you hear me? Can you hear me? Yes, yes. 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 Ma'am, you had a very informative lecture. I enjoyed every bit of it. And many things which I didn't know, I came to know about all these things. My question is, how important this unit as far as exam is concerned? Final, the exam will be appear for. Hello. Exam point of view. Hello, sir. Sir, I have given. Sir, please listen. I have given the question bank to Madam Preeti Madam. Okay. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इनिशिएटिव्स जो है ना, जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एनडीएल का फुल फॉर्म क्या है उस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, राइट. सो द क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी. सी हियर द मेन
ऑब्जेक्टिव इज आपको सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है वो बताना, सो दैट यू कैन वाइडन योर सर्चेस. जैसे NDLTD स्टैंड्स फॉर, NPTEL स्टैंड्स फॉर, ये ज्ञानकोश is the initiative of, like that questions may occur be there. Okay, ma'am. Thank you very much, ma'am. Okay sir. मैडम एक चीज जानना चाहता हूँ. जी हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, लिटरेचर रिव्यू, अभी मैं चूंकि बिगिनर हूँ इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि लिटरेचर रिव्यू अपने को कितने साल बैक तक का देखना जस्टिफाइड है? कि ऐसे तो 20 साल पहले का लिटरेचर रिव्यू सेम टॉपिक पर क्या मतलब है, अभी के 5 साल तक कौन सा जस्टिफाइड होगा? सर, it depends upon the research need. आपका रिसर्च कौन सा है उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. इफ इट इज हिस्टोरिकल रिसर्च तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ता है. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा. देखिए, हमारे देश में हेल्दी एंटीसेप्टिक है, ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, राइट? लेकिन इसका बायोपायरेसी हुआ एंड इन 1995 यूएस पेटेंट ऑफिस ने हल्दी का पेटेंट दे दिया सुमन के दास एंड हरिहर कोहली को. और 1995 में जब एंटीसेप्टिक गुणधर्म के लिए यूएस ऑफिस ने ये दिया, पेटेंट ग्रांट किया, और हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे उसका असर पड़ा, तो हमने वो केस को CSIR ने लड़ा. और CSIR ने क्या किया कि हल्दी हमको कब से पता थी कि इट इज एंटीसेप्टिक, तो उसके पूरे जो एविडेंसेस है वो एंशियंट लिटरेचर तक गए वो लोग और वहां से निकाले. तो उन्होंने 32 एविडेंसेस दिए. उसमें से एक तो ऐसा भित्ति चित्र था उर्दू भाषा में लिखा हुआ, पर्शियन भाषा उर्दू भाषा में एक मैन्युस्क्रिप्ट था जिसमें हल्दी लिखा है, एंड दैट वाज रिटन इन 1857 1867. तो अभी यहाँ पे हल्दी एंटीसेप्टिक गुणधर्म है, ये 1995 के पहले बहुत सारे जर्नल्स में आया होगा इसके, लेकिन उनको बताना था कि ये कितना प्राचीन ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारा करके वो 18th सेंचुरी तक के लिटरेचर को ढूंढे उन्होंने और वो एविडेंसेस दिए, है ना? तो ये ऐसा कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको पिछले 20 साल के ही देने हैं या वैसे ही देने हैं. जितने ओरिजिनल दे सकते हो आप दे सकते हो, राइट? So there is no restriction and it almost depend upon your topic of research. हाँ मैडम, मैं समझ गया. चूंकि मैं प्योरली टेक्निकल आदमी हूँ, प्योरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ और आज भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही चलता हूँ, तो मैं प्योर वो आदमी हूँ. तो लेकिन चूंकि मैं HR में शिफ्ट किया हूँ, मैं इस पर कुछ करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे दिखा है कि मेरे इंजीनियरिंग फील्ड में क्या लैकिंग है, उसके हिसाब से इस फील्ड में घुस के मैं देख रहा हूँ क्या होना चाहता है. तो मोटिवेशन लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी में क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है, मोटिवेशन लेवल लो, ये आप लोग सब समझती है. तो उसके लिए ऐसा लगता है कि मोटिवेशन 50 साल से चल रहा है, बहुत लोगों ने इस पे काम किया, कोई मेरी बात नहीं है. लेकिन मेरे इंडस्ट्री में बिल्कुल भी इस पे काम नहीं हुआ है. मैं सोचता हूँ कि कहाँ जाए, अपना 20 साल का लिटरेचर रिव्यू पढ़ के समझ में आ जाता है क्या, या और पीछे चला जाऊँ क्या? जहाँ भी पीछे जाऊँ मोटिवेशन हर जगह दिखता ही है, क्योंकि बहुत पुराना टॉपिक है. मेरे इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नया मुझे अच्छा, तो मैं कहाँ जाऊँ, ये कंफ्यूजन होता है. तो लगता है कि इसी समय में लिटरेचर रिव्यू पढ़ूंगा तो गलत हो जाएगा क्या, ऐसा होगा. नहीं सर, आप करो, काम कीजिए, आपके जो एंगल है आपका उसके हिसाब से कीजिएगा. और किसी को पूछना है? Any question? I think मैडम क्वेश्चन पूछिए. ठीक है ना.
So thank you so much, madam. ठीक है Madam, tomorrow also the same timing, 2 to 5. यस 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 Okay. Thank you so थैंक much, यू madam, for today's informative session. Thank you, madam. थैंक यू सो मच Friends, now I am ending the meeting. Tomorrow we will meet at 10:15. Hello, am I audible? यस मैम। ओके Yes. देखिए अभी अपने आशीष लिंगे सर का जो टॉपिक थे वो सारे आज कंप्लीट हो गए हैं। हिरवड़े मैडम ने अभी यूनिट 2 के बचे हुए टॉपिक्स आज कवर किए हैं। कल बचे हुए टॉपिक्स और कवर करेंगे आफ्टरनून में। कल से अपन सुबह से चालू कर रहे हैं नेक्स्ट यूनिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज द पार्ट ऑफ अवर लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 3। तो स्टैटिस्टिक विल बी डिलीवर्ड बाय डॉक्टर टीनू अग्रवाल मैडम, और वो पूरा आप लोगों को डिक्टेशन करके लिखवा के देंगे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा यू गेटिंग? तो उनके एमसीक्यूज भी मैंने डाले हुए हैं, उनके पीपीटीज भी मैंने डाला हुआ है, बट वो मैक्सिमम फोकस करते हैं ब्लैक बोर्ड टीचिंग पे, लेकिन अभी ब्लैक बोर्ड की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो वो आपको डायरेक्टली डिक्टेशन दे के सारी चीजें समझाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स। तो कल आप थोड़ा रेडी रहिएगा कॉपी पेन लेते हुए। तो मैडम के 6 लेक्चर से कल और परसों ऐसे 3-3 सेशन है, वो पूरा स्टैटिस्टिक वाला पार्ट कवर करेंगे, ऑल द टेस्ट एंड ऑल द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ओके, तो वी विल मीट। ओके मैम ओके मैम। मैम आपने वो क्वेश्चंस वगैरह कहाँ डाले हैं? अरे मूडल साइट वरती आहे ना, जिस पे आप अटेंडेंस हो का? देते हैं, जिस पे आप अटेंडेंस देते हैं हाँ, उसके हाँ। नीचे का सेक्शन नहीं देखा अभी तक आप लोगों ने? सारे नोट्स भी है, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है उसमें। ऑफ ईच यूनिट? यस यस, अभी तक आपने मैडम देखा? उसमें Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have seen that. ओके I'm trying to solve those things. मैडम Yes. 1 मिनट के नहीं है। सिर्फ यूनिट 5 के क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि वो लखेरा हाँ, मैडम हाँ, ने आपसे पर्सनली कराए हैं, इसलिए यूनिट हाँ, 5 के हाँ। क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। लेकिन यूनिट 1 टू यूनिट 4 सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। ऑलमोस्ट 30-35 क्वेश्चंस आर देयर। और टीनू अग्रवाल मैडम के एमसीक्यू 75 एमसीक्यूज है, वो भी आपको अच्छे से करने हैं। कल मैडम आप लोगों से सारी चीजें कराएंगे अच्छे से। हेलो ओके ओके जी। मैम। ओके मैम। हेलो मैम। यस मैम ये जो कंटेंट्स है, जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम 2 दिन पोस्टपोन होती है अपने, और मान लीजिए फॉर से टू द वर्स्ट सिचुएशन यदि मान लीजिए एग्जाम 15 दिन यदि एक्सटेंड होती है, तो ये कंटेंट हमें एक्सेसिबल कितने दिन तक रहेंगे? एक्सेसिबल रहेगा सर जब तक आपकी एग्जाम खत्म नहीं होती तब तक। अच्छा, ठीक है, जैसे क्योंकि फॉर आपके जस्ट बाद आपके तुरंत बाद अभी नेक्स्ट बैच है 15 तारीख से, तो उनके लिए भी ये साइट ओपन रहेगी, तो आप लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो बैच वाले भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इट इज ओपनली एक्सेसिबल फॉर आवर बैच आल्सो इवन Yes, द yes. एग्जाम इज ओवर? यस यस यस, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि अभी देखिए आपकी बैच 13 को खत्म होगी और नेक्स्ट बैच 15 से चालू होगी। तो अगर आपकी एग्जाम होती है और अभी अगर पोस्टपोन होती है और नेक्स्ट अगर रहती है तो वो 25 तारीख को हो सकती है नेक्स्ट बैच वालों के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ओके। हेलो मैम। बीच में नहीं होगी, मतलब 13 के बाद 16-17 को अगर एग्जाम होगी ऐसा नहीं है। अगर पोस्टपोन होती है तो नेक्स्ट बैच वालों के साथ 25 को रहेगी, 2 अलग अलग बैचेस में। तो वो देखते हैं, कल वो फाइनल समझेगा हमें कि क्या अभी स्ट्रेटेजी बनाते हैं यूनिवर्सिटी वाले। हेलो मैम। हाँ सेकंड आपका वीडियो मैम मैं रामकृष्ण पटले। आज के जो अटेंडेंस है मैम मैंने 11:45 को दिया है। ठीक है ना, हो जाएगी तो वो कंसिडर। पटले ठीक है, सर ओके, तुमचं लायब्ररी आणि इन्फॉर्मेशन सायन्स आहे ना? नाही मैडम केमिस्ट्री आहे। केमिस्ट्री आहे का? आप लोगों हो. ने इसमें सब्जेक्ट चेक कर लिए थे माझे क्या? माझे हो केलं होतं। एक मिनिट हा, मी आता माझे जो कलिग आहे ना मॅडम, माझे जो कलिग आहे मनोहर बांद्रे सर, है ना, आमचे सेम कॉलेजचे आहोत दोघे, तर त्यांची आहे लायब्ररी। एक सेकंद थांबा हा, म्हणजे सेमिनारचा टाइम टेबल मी लावत होते तर त्यामध्ये मला तुमच्या नावासमोर लायब्ररी आणि इन्फॉर्मेशन सायन्स नाही नाही माझे जे वर आहेत ना, वरच्या second. लिस्ट मध्ये नाही का? एक मिनिट थांबा। हा हा, बरोबर बरोबर, मनोहर बांद्रे, ठीक आहे ना सर? हा, ते माझे कलिग आहे, सोबत राहते। ठीक ठीक आहे, आहे।
ओके ओके मैम, ओके रामकृष्ण पटले सेकंड आपका वीडियो अवेलेबल है क्या रिकॉर्डिंग? सॉरी थँक्यू मॅम. सर ऐकू नाही आलं. कल सेकंड आपका जो लेक्चर था हमारा, कानिटकर मैडम के ना, वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल? कानिटकर मैडम के, हाँ कानिटकर. हाँ सर मैं अभी करती हूँ अपलोड. उसमें से पहला सेशन जो हुआ था ना, जब उनकी स्क्रीन अपने को डिस्प्ले नहीं हो रही थी प्रॉपरली, शायद वो वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया है तो बीच में इंटरप्ट हुआ है, बट सेकंड हाफ वाला पार्ट अच्छे से आ गया है, तो वो मैं अपलोड करती हूँ. पहले वाला नहीं है? नहीं, फर्स्ट पार्ट एकदम छोटा सा ही वो रिकॉर्ड हुआ है, बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी इंटरनेट कनेक्शन के वजह से, बट स्टिल दैट पार्ट ऑल्सो आई विल अपलोड एंड शेयर विथ ऑल ऑफ यू. ओके. हॅलो मॅम. जी मॅम ते रिसर्च सेंटरचे आहे ना, ते करेक्शन करायचे होतं, मागे दिला होता आम्ही, ते केले का नाही माहित मी नाही पडलं करेक्टेड आतापर्यंत. वाली लिस्ट ना उद्या अपलोड करतील कुंभारे सर ऑफिस मधनं. बाकी करेक्शन जे पण तुम्ही सांगितले असतील ते झाले की नाही एकदा बघून घ्याल. अच्छा ठीक ठीक आहे. है. बेसिकली सर्टिफिकेट और मार्कशीट में क्या आता है सर, आपका नाम, सरनेम, सब्जेक्ट, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं. बाकी सर्टिफिकेट पे ऐसे डिस्प्ले नहीं होता है. ओके ओके ठीक है ना मैम. चलिए फिर आज रुकते हैं यहाँ पे. थैंक यू. आपका सेमिनार का टाइम टेबल ऑलमोस्ट रेडी है. कल तक अपना वो फाइनल हो जाएगा, तो मैं कल आप लोगों को सेंड करती हूँ. पहले इनके रहेंगे, सोशल वर्क वालों के सेमिनार रहेंगे. I will confirm it by tomorrow only because maximum majority of कॉमर्स मैनेजमेंट वालों के कंफर्म हो गए हैं. 11 तारीख को रहेंगे वो, गुरुवार को, थर्सडे मॉर्निंग 10:30 से 1:30 बजे तक सारे कॉमर्स मैनेजमेंट वालों के रहेंगे. वो एक रिसोर्स पर्सन ने कंफर्म कर दिया है, और बाकी का कंफर्मेशन मैं कल तक आप लोगों को देती हूँ. ओके मॅम. ओके मॅडम पीपीटी उद्या सकाळी की संध्याकाळपर्यंत, तेव्हापर्यंत? उद्या संध्याकाळपर्यंत पाठवा मॅडम, जसं जमेल तसं. ठीक आहे. ओके मॅम. उद्यापर्यंत सगळ्यांची पीपीटीज पाठवून द्या आपण, म्हणजे मला ते अरेंज करायला सोपं पडेल. हॅलो मॅम. जी मॅम त्याच्या पीपीटीच्या फ्रंट पेजवर साईन पाहिजे का कंपल्सरी? पीपीटीच्या फ्रंट पेजवर नाही, रिपोर्ट बनवाल त्याच्या लास्ट पेज वरती साईन हवी आहे. फ्रंट पेज जे मी तुम्हाला दिलंय मूडल मध्ये कव्हर पेज ते राहील, आणि लास्ट पेज जिथे रेफरन्सेस और बिब्लिओग्राफी संपेल त्या पेज वरती तुमची आणि तुमच्या गाईडची साईन असायला पाहिजे. ब्लँक पेजवर नको, ऍटलीस्ट एक तरी रेफरन्स त्याच्यावर पाहिजे. तर हे रिपोर्ट मध्ये पाहिजे ना मॅडम? पीपीटी प्रेझेंटेशन वर तुम्ही साईन कशी लिहिणार ना? पीपीटी वर नको आहे मॅडम, रिपोर्ट जो सबमिट कराल वर्ड डॉक्युमेंट. ओके, म्हणजे पीपीटीची हार्ड कॉपी नाही सबमिट? नाही, पीपीटीची हार्ड कॉपी सबमिट कराल तर मार्क्स डिडक्ट होतील. हँडआउट्स नको आहे आम्हाला, आम्हाला रिपोर्ट हवा आहे. पीपीटीचे हँडआउट्स नाही सबमिट करायचे. ओके मैम. ओके ठीक है. टेक्सचुअल फॉर्मेट चाहिए 20 to 25 पेजेस और मिनिमम 20 पेजेस का तो भी होना चाहिए. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है. बाप रे. चलिए, now we will end the meeting. See you tomorrow at 10:30. मैडम सुपरवाइजर की डिजिटल साइन चलेगी क्या रिपोर्ट? यस, मैंने डे 1 में ही बताया है, जो आउटसाइडर्स है उनकी सिग्नेचर आप डिजिटल साइन, स्कैन साइन ला सकते हैं. ओके, थैंक यू मैम. ओके.